Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Shahid, class BS Zoology 8th semester, roll number 28. Today, the topic of my presentation is primer blast. First of one, table contents, table of contents in which includes the definition, process, algorithm, use of blast, identifying species, locating domains, and some of other uses of blast. First of one, definition of primer blast. Blast is a basic local alignment search tools. In bioinformatics, BLAST is an algorithm and program for comparing primary biological sequence information such as the amino acid sequences of the proteins and the nucleotides of DNA and the RNA sequences. A BLAST search enables a researcher to compare a subject protein or a nucleotide sequence, which is we call the query, with the compare with the library or database of the sequences, and the identifying database sequences that resembles with the query sequence above a certain threshold. मीन्स डैट के रिसर्चर जो है वो एक सब्जेक्ट प्रोटीन्स को न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को एज अ क्यूरी उसे रिजेंबल करता है विद द लाइब्रेरी और डाटाबेस सीक्वेंसेस के साथ, और एक बेस्ट मैचअप जो है वो सिमिलरिटी का वो उसे आइडेंटिफाई किया जाता है विद डाटाबेस सीक्वेंसेस. For example, gene in the mouse, a scientist will typically perform a BLAST search for the human genome to see if humans carry a similar gene. BLAST will identify sequences in the human genome that resembles with the mouse genes based on similarity of the sequences. माउस के जीन्स को साइंटिस्ट ने रिजेंबल किया ह्यूमन जीनोम्स के साथ, ह्यूमंस के जीन्स के साथ, कि इनके अंदर जो है वो सिमिलर जीन्स मौजूद हैं और इनके दरमियान सिमिलरिटी मौजूद हैं, और इनके जो माउस के जो जीन्स है उसको एज अ क्यूरी लिया और उससे रिजेंबल किया डेटाबेस सीक्वेंसेस के साथ जो कि ह्यूमन जीनोम्स का सीक्वेंस था. नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेस. यूजिंग अ heuristic method, BLAST finds the similar sequences by getting short matches between two sequences. This process of finding similar sequences is called the seeding, or it is after this first match that BLAST begins to make the local alignments. While attempting to find similarity in sequences, sets of common letters known as the words are very important. कि कुछ सिमिलर लेटर्स, कुछ सिमिलर वर्ड्स जो है उनकी वो बना लिए जाते हैं जिनके अंदर सिमिलरिटीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट द सीक्वेंस contains the following stretches of the letters G, L, K, F, A. The word size would be 3 letters. जो ये एक कंप्लीट सीक्वेंस है जी से लेके ए तक, इनको तोड़कर जो है वो 3 लेटर सीक्वेंसेस बनाया जाएगा, 3 लेटर का सीक्वेंस जिनके अंदर कुछ हद तक सिमिलरिटीज़ भी मौजूद होंगी. नेक्स्ट देखें कि इन दिस केस यूजिंग द गिवन स्ट्रेच ऑफ लेटर्स द सर्च वर्ड्स वुड बी जी आई के LKF, KFA. The heuristic algorithms of BLAST locates all common 3 letters words between the sequences of the interest and the hit sequence or the sequence from the database. This result will then be used to build an अलाइनमेंट्स. इससे जो है वो एक इस सीक्वेंसेस के साथ एक अलाइनमेंट्स जो है उससे तरतीब दिया जाएगा, अलाइनमेंट बनाया जाएगा. और व्हेन कंपेयर्ड बाय यूजिंग अ स्कोरिंग मैट्रिक्सेस, स्कोरिंग मैट्रिक्स को यूज़ करके जो है वो कंपैरिजन किया जाता है. दो सीक्वेंसेस का जो कंपैरिजन किया जाता है, जो सिमिलरिटी फाइंड की जाती है, उसके लिए स्कोरिंग मैट्रिक्सेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. जो बेस्ट वन स्कोरिंग मैट्रिक्स है जो कॉमनली यूज़ किया जा रहा है ब्लास्ट के लिए वो BLOSUM62 है. नेक्स्ट वन है एल्गोरिदम्स. Algorithms to run the software, BLAST requires a query sequence to search for and the sequence to search against, also called the target sequences or a sequence database containing the multiple search sequence. Algorithm हमेशा तब ही बनेगा, उस सॉफ्टवेयर को रन तब ही किया जाएगा जब हमारे पास एक सब्जेक्ट प्रोटीन या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आएगा जिसको हम एज अ क्यूरी यूज़ करेंगे उसको डाटाबेस सीक्वेंस के साथ रिजेंबल करने के लिए
या उसको जो हमारे पास डेटाबेस सीक्वेंस मौजूद होगा उसके साथ रिजेंबल करेंगे, उसके दरमियान जो मैचिंग है या जो सिमिलरिटीज़ हैं उसको फाइंड करेंगे। ये तमाम प्रोसेस एल्गोरिदम के रहेगा, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको रन करने के लिए हमारे पास क्यूरी सीक्वेंस जो है वो मौजूद होना चाहिए। ब्रास्ट विल फाइंड द सब सीक्वेंसेस इन द डेटाबेस विच आर सिमिलर टू द सब सीक्वेंस इन द क्यूरी। ठीक है, और इन टिपिकल यूजेज द क्यूरी सीक्वेंस इज मच स्मॉलर दैन द डेटाबेस सीक्वेंसेस। जो क्यूरी सीक्वेंस होगा वो डेटाबेस सीक्वेंस से बहुत ज़्यादा छोटा होगा या कम होगा। क्यूरी सीक्वेंस में बी 1000 न्यूक्लियोटाइड्स वाई द डेटाबेस इज अ सर्वर बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। BLAST searches for the high scoring sequence alignments between the query sequence and the existing sequence in the database using a heuristic approach that approximates the Smith-Waterman algorithms। जो स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम्स हैं इसको यूज़ किया जाता है जो अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट है उसको हासिल करने के लिए स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम यूज़ किया जाएगा। हाउएवर द एग्जिस्टिव स्मिथ वाटरमैन अप्रोच इज़ टू स्लो फॉर सर्चिंग लार्ज जीनोमिक डेटाबेस सच एज द जेनबैंक। जो जेनबैंक का डेटाबेस है या उसका जो डेटाबेस सीक्वेंसेस है उसको सर्च करने के लिए या उसको कंपैरिजन करने के लिए, उसके रिजल्ट्स को फाइंड करने के लिए, उसकी जो सिमिलरिटीज़ हैं उसको फाइंड करने के लिए ये जो स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम है ये बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करता है और ये ठीक काम नहीं करेगा। इसलिए जो है वो एक दूसरा जो है वो एल्गोरिदम यूज़ किया जाएगा, कोई डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ किया जाएगा। Next one, the uses of the BLAST. BLAST can be used for several purposes such as the identifying species, locating domains, establishing phylogeny, DNA mapping, and BLAST comparison. First one is identifying species. With the use of BLAST, you can possibly correctly identify a species or find the homologous species. This can be useful, for example, when you are working with the DNA sequencer from an unknown species। एक अननोन स्पीशीज़ है उसका डीएनए सीक्वेंस किया गया है, उसका डीएनए सीक्वेंस लेके हम अपनी डेटाबेस सीक्वेंस के साथ कंपैरिजन करेंगे और फाइंड करेंगे कि जो अननोन स्पीशीज़ है वो हमारे पास जो नॉन स्पीशीज़ है उनमें से किसके साथ रिलेट करती है, उसका सीक्वेंस किसके साथ सिमिलरिटी या मैच हो रहा है और उसके जो फोर फादर्स हैं वो कौन से हैं, वो कहाँ जाकर जो है वो मैचिंग आ रही है। इससे हम स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो स्पीशीज़ कौन सी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, उसकी जो है वो हैबिटेट्स कैसा है। नेक्स्ट वन है लोकेटिंग डोमेन्स। व्हेन वर्किंग विद द प्रोटीन सीक्वेंस यू कैन इनपुट इट इनटू BLAST टू लोकेट नॉन डोमेन्स विद इन द सीक्वेंस ऑफ द इंटरेस्ट। जिस सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट का हम डोमेन फाइंड करना चाह रहे हैं उसको हम क्या करेंगे कि BLAST की इनपुट के अंदर या BLAST के अंदर हम एंटर करेंगे, उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो हम प्रोटीन सीक्वेंस हमने वहाँ पे एंटर किया है हमें उसका डोमेन जो है वो मिल जाएगा थ्रू BLAST। एस्टैब्लिशिंग फाइलोजेनी। Using the result received through BLAST, you can create a phylogenetic tree using the BLAST web page। BLAST web page को यूज़ करके हम एक phylogenetic ट्री जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं कि ये स्टार्टअप कहाँ से हुआ, नेक्स्ट जो है वो क्या कुछ आया, कौन कौन सी स्पीशीज़ आई और प्रेजेंट अब कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। Phylogenesis based on BLAST alone are less reliable than other purpose-built computational phylogenetic methods, so should only be relied upon for first pass phylogenetic analysis। Next one is the DNA mapping। When we working with a known species and looking to sequence a gene at an unknown location, BLAST can compare the chromosomal positions of the sequence of interest to relevant sequence in the database। NCBI has a magic BLAST tool built around BLAST for this purpose। DNA मैपिंग के लिए भी हम BLAST को यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करने के लिए कि जो DNA है, जो जीन है वो किस स्पीशीज़ के साथ रिलेट करता है या उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं।
At the end, comparison. When working with the genes, BLAST can locate common genes into related species and can be used to map nations from one organism to another. दो organisms के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए भी हम ब्लास्ट को यूज़ करेंगे. ब्लास्ट हमें बताएगा कि इनके अंदर कौन कौन से कॉमन जीन्स मौजूद हैं इन स्पीशीज़ के अंदर, कहाँ कहाँ पे इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं और कहाँ कहाँ पे इनके अंदर डिफरेंसेस मौजूद हैं, और कौन कौन सी चीज़ इनकी जो है वो मिलती हैं इनके फोर फादर्स के साथ, और कौन सी स्पीशीज़ इनसे पहले मौजूद थी और इनके बाद कौन सी स्पीशीज़ जो है वो मौजूद है. At the end, these are the references which we insert in this page, and thank you for this my presentation.